سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ڈینگی سے دوسری ہلاکت 4 سالہ جنت انتقال کر گئی۔ کرنگی 4 نمبر کی رہائشی بچی سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں زیر علاج تھی۔ انتظامیہ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں ڈینگی بخار کو موت کی وجہ قرار دیا۔ اکتوبر میں 201 اور رواں سال 695 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے۔ ڈینگی سے کراچی میں دوسری ہلاکت ہوئی ہے۔ 4 سالہ جنت انتقال کر گئی۔ کرنگی 4 نمبر کی رہائشی بچی سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں زیر علاج تھی۔ لیاری ندی میں ڈوبنے والا 5 سالہ مزمل تاحال لاپتہ ہے۔ مزمل کی تلاش کے لیے آپریشن صبح پھر شروع کیا جائے گا۔ علاقہ مکینوں کی ندی کنارے غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی۔ بچے کے والد الہداد کا کہنا تھا کہ مزمل 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ مزمل کھیلتے ہوئے ندی میں گر کر ڈوب گیا۔ CIA اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ SIU کی حراست میں نوجوان عرفان کی ہلاکت کے معاملے پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سلمان سلیم کی رپورٹ۔ پولیس حراست میں نوجوان کی ہلاکت کا افسوسناک واقعہ، صوبائی وزیر داخلہ کا نوٹس، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ٹھان لی۔ کراچی میں گزشتہ روز پولیس حراست میں نوجوان کی ہلاکت کا دلخراش واقعہ پیش آیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے ثابت کیا کہ نوجوان پر بدترین تشدد کیا گیا، جس سے وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور نوٹس لے لیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کے بیان کے مطابق پولیس کی تحویل میں بچے کی موت انتہائی تشویشناک امر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی اس واقعے میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ واقعے کی مکمل فرانسک اور تفتیش ہونی باقی ہے۔ دوسری جانب SSP SIU امجد شیخ کے بیان کے مطابق اگر پولیس اہلکار ملوث ثابت ہوئے تو ان کے خلاف سخت قانونی اور محکمہ کارروائی کی جائے گی۔ کراچی پولیس چیف کے احکامات پر کیس کی تفتیش ساؤتھ پولیس سے FI کے سپرد کرنے کے احکامات ملے ہیں تاکہ تحقیقات منصفانہ اور غیر جانبدار رہیں۔ SSP امجد شیخ کا مزید کہنا تھا کہ میڈیکل رپورٹ سمیت تمام شواہد کی روشنی میں تفتیش جاری ہے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ پولیس اپنے اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ شہر قائد میں ایک ہی روز میں 3 آتش زدگی کے واقعات۔ فائر بریگیڈ حکام تمام جگہوں پر لیٹ پہنچے۔ بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں گودام مکمل جل کر خاکستر۔ رزاق آباد اور فشری میں جزوی نقصان پہنچا۔ شہریوں نے کہا کہ فائر بریگیڈ ٹیم ٹائم پر پہنچتی تو نقصان کم ہوتا۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ کراچی میں آتش زدگی کے 3 مختلف واقعات۔ بلدیہ اتحاد ٹاؤن کے گودام میں آتش زدگی کا معاملہ، آگ پر 3 سے زائد گاڑیوں کی مدد سے قابو پا لیا گیا۔ ہر طرف تباہی کے مناظر، گودام مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔ 6 گاڑیاں اور گودام میں موجود گتا، مشین اور ہر چیز آگ کی نظر ہو گئی۔ گودام مالک حیات خان کا کہنا تھا کہ آگ صبح 7 بجے کے قریب لگی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں 2 گھنٹے بعد آئیں۔ 2 گھنٹے بعد بھی ایک گاڑی آئی۔ جب گاڑیاں آئیں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ 3 سے 4 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ 7 بجے تقریباً آس پاس کچھ زیادہ کم یہ آگ لگ گیا تو فائر بریگیڈر والا کے لیے ہم نے فون کیا، وہ ہے اس سائڈ ایریا میں۔ یہاں سے جب پہنچے گا تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے تو پہنچے گا بھی نہیں۔ جب وہ آ گیا تو سارا چیز ختم ہوا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد پہنچ گیا۔ یہ تقریباً 3 کروڑ 4 کروڑ نقصان ہوا ہے۔ فشری مچھلی مارکیٹ سمندر میں کھڑی لانچ میں آگ بھڑک اٹھی۔ 3 گاڑیوں کی مدد سے قابو پایا گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آگ کھانا پکانے کے دوران لگی۔ فائر بریگیڈ نہ آنے کی صورت میں آگ بھڑک گئی۔ سالن پکاتے وقت جب یہاں پہ بھنڈاری تو اپنے لیے وغیرہ پکاتے تو اس ٹائم آگ لگی، بھڑک اٹھی۔ تو یہاں پہ فشری والوں کی طرف سے کوئی بھی ایمرجنسی کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے۔ اس ٹائم کچھ بھی آگ نہیں تھی، تھوڑی سی صرف اوپر سائڈ پہ لگی ہوئی تھی۔ اگر کوئی بھی یہاں پہ کوئی بھی ریسکیو کا سسٹم ہوتا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ یار تقریباً 1 گھنٹے پہلے ہوئے جو ہے، یہاں پہ اتنا آگ نہیں لگا ہوا تھا، بجھ جاتا اگر یہاں سہولت ہوتی۔ اتنا بڑا کاروبار ہے فشری میں، لیکن یہاں کوئی سہولت سیکورٹی نہیں ہے۔ سب کچھ کارنامے ہوتے ہیں لیکن کوئی سیکورٹی نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کراچی کا تقریباً سب سے بڑا کاروبار والی جگہ فشری ہے۔ رزاق آباد میں پولٹری فارم میں لگنے والی آگ پر 2 گاڑیوں کی مدد سے قابو پا لیا گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ کیمرامین امجد کے ہمراہ اسامہ ملک، City 21۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا گزری کا دورہ۔ پمپنگ اسٹیشن پر جاری کام کا جائزہ لیا گیا۔ کہا گزری میں پمپنگ اسٹیشن پر کام کچھ ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا۔ شہریوں کے لیے کمیونٹی سینٹرز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کا عزم۔ سندھ حکومت کراچی کے تمام علاقوں میں یکساں ترقی کے لیے پرعزم۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی ملاقات۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میگا پروجیکٹس اور کلک کے جاری ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ بلدیاتی ادارے عوامی خدمت کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھیں گے۔
सिंध हुकूमत कराची के तमाम इलाकों में तरक्की के लिए यकसां तरक्की के लिए पुरज़्म है। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मुलाकात हुई। बल्दिया उज़्मा कराची मेगा प्रोजेक्ट्स और क्लिक के जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। सिंध हुकूमत का शहर कायद के लिए बड़ा फैसला, कराची की ब्यूटिफिकेशन और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग के लिए इक़दामात को अमली शक्ल दे दी गई। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, वज़ीर मेहनत और अफराद क़ुव्वत सिंध सईद गनी और चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी बल्दियात, DIG ट्रैफिक और दीगर अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान वफ़द ने शाहीन कॉम्प्लेक्स, II चंद्रिकर रोड, मेट्रोपोल, शारा फैसल, शाह फैसल टाउन, नाथा खान और मलिर 15 समेत मुख्तलिफ मकामात पर जारी और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची की ब्यूटिफिकेशन और जदीद सहूलतों की फराहमी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर मेहनत सईद गनी ने कहा कि कराची की तरक्की का मतलब सिंध की तरक्की है। सिंध हुकूमत शहरी सहूलतों की बेहतरी, ट्रैफिक निज़ाम में इस्लाहात और रोज़गार के मौक़ों के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने अफसरान को हिदायत दी कि तमाम तरक्याती मनसूबों की जामे फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार की जाएँ ताकि मनसूबे पायदार और मौसर साबित हों। वज़रा और चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि मनसूबों की रफ्तार तेज़ की जाए और मेयार और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़ें, आपको बताएं ओल्ड सिटी एरिया में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज के बायस धमाका। इलाका मकीनों के मुताबिक रिहायशी इमारत की दूसरी मंजिल पर सुबह के औकात में धमाका हुआ था। घर में मौजूद चारों अफराद झुलसकर जख्मी हुए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में सुबह के औकात में खौफनाक धमाके की आवाज ने इलाके को हिलाकर रख दिया। रिहायशी इमारत की दूसरी मंजिल पर गैस लीकेज के बायस अचानक धमाका हुआ, जिससे इमारत के अंदर मौजूद सामान जलकर खाकसार हो गया। इलाका मकीनों के मुताबिक घर में उस वक्त 4 अफराद मौजूद थे, जिनमें 2 बच्चे और उनके वालिदैन शामिल थे। धमाके के नतीजे में चारों अफराद झुलसकर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। सुबह के वक्त धमाका हुआ, हम सब खौफजदा हो गए। हम आग बुझाने लग गए। गैलरी के अंदर देख रहे हैं ना आप, आग लगी हुई थी तो इसको बुझाया। अंदर पर्दों में आग लगी हुई थी, वो बुझाई। अल्लाह ने बेहतर करा। फिर नीचे ईदगाह थाने वाले आ गए फौरन। अब ये रात को सुबह के टाइम गैस आती है, यहाँ पे इलाके में 6 बजे गैस आती है, तो ये रात को शायद गैस ऑन करके भूल गए। अब सुबह जब इन्होंने इत्तेफाक है शायद माचिस लगाया या किसी भी चीज़ से हुआ तो एक धमाका हुआ है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 बच्चियां जो है उनकी जो ड्रेसिंग वगैरह करके घर भेज दिया। शौहर की भी ड्रेसिंग हो गई है, वो उनको भी डिस्चार्ज कर दिया। मुतासरा खानदान की एक खातून अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, जबकि इलाके में सूरत हाल अब मामूल पर आ चुकी है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। लियाकताबाद टाउन इंतजामिया अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड को 2 माह गुजर जाने के बावजूद दुरुस्त न कर सकी। 13 अगस्त को सड़क का इफ्तिताह हुआ था, जो 5 रोज़ बाद ही धंस गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए परेशानी। आवाम के टैक्सों के करोड़ों रुपए से अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड की तामीर हुई थी। रवां बरस 13 अगस्त को इफ्तिताह हुआ और 18 अगस्त को सड़क जगह जगह से धंस गई। लियाकताबाद टाउन इंतजामिया ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए कई अवामिल को मौजूदा इल्जाम ठहराते हुए चंद रोज में सड़क दोबारा दुरुस्त करने का ऐलान किया गया। 2 माह बाद उसकी मरम्मत अधूरी है, जो शहरियों के लिए वबाल जान बनी हुई है। अरे गलत बात है, इसे कहना मैं आदमी को परेशान करना। यहाँ बैठे दुकान लिए बैठे हुए धूल मिट्टी खाते रहते भाई, वो क्या कहे। अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड से मुंसलिक दुकानदार सबसे ज्यादा परेशान है। कहते हैं मुसलसल धूल मिट्टी और गर्दो गुबार निकलने पर मजबूर है। हादसा तो होते हैं शाम को, सुबह में ट्रैफिक ज्यादा होता है। जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तो फिर हादसा भी होते हैं। इसके हालात खराब बहुत, यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही है, इतनी धूल मट्टी उड़ाती हुई जा रही है। पूरी दुकानों का रोड का सत्यानाश लगा पड़ा हुआ है। कूड़ा लोग ऐसी फेंक रहे हैं, गटर के मैन होल जितने भी सब खुले पड़े हुए, उस पर ढकने तक नहीं डाले जा रहे। अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड के लियाकताबाद डाकखाना ता लियारी एक्सप्रेस वे तमाम मेन होल खुले हुए हैं, जिससे यौमिया हादसात और ट्रैफिक जाम हो रहा है। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में सीवरेज का बोसीदा निज़ाम शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। गलियों की खस्ता हालत किसी अजियत से कम नहीं। शहरी कहते हैं कोरंगी की जितनी आबादी है उतने ही मसाइल हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। गफलत शहरियों के लिए दर्द सर। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में खुले नाले और सीवरेज का तबाहाल निजाम इम्तिहान बन गया। हर तरफ कचरे के ढेर, शहरी अजियत में मुब्तला। कचरे के बायस गलियों के रास्ते तक बंद, ताफून से बीमारियां फैलने लगी। इलाका मकीन कहते हैं ऐसा लगता है कोरंगी के बासी जैसे इंसान ही नहीं। हर बुनियादी सहूलियात नायाब है। बारिश में तो इलाके का हाल ही बुरा हो जाता है। एक बर्स से सीवरेज का सिस्टम मुतासिर है। भाई यही पानी का है काम। सब नमाजी जाते हैं, परेशान होते हैं, औरतें लड़कियाँ जाती हैं स्कूल में,
ये परेशानी बाई से नहीं पढ़ाते हैं बच्चों का वो जी भाई जी। तो बच्चे तो बड़े परेशानी हाँ यही तो सारा ये भाई ये गली की लेने जल जाए हर चीज़ हो जाए। बस इसी तरह एक गली अगर साफ़ है तो दो गलियां गंदी हैं, फिर दो गलियां गंदी हैं तो तीसरी गली साफ़ है। बस क्योंकि ऊंची नीची है तो जिसका दिल करता है अपने घर के आगे मट्टी मलबे के ट्रक डलवा देता है और इधर कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इंतजामिया का कहना है कि जल्द इलाके के हालात बदलने वाले हैं, जबकि इलाका मकीन सूरत हाल से मुकम्मल मायूस है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ अक्सर शाहिद T21। औरंगी टाउन सेक्टर 15D के ईदगाह ग्राउंड पर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। कब्जा रुकवाने के लिए अहले मोहल्ला ने मेयर कराची और डिप्टी कमिश्नर वेस्ट से मदद तलब कर ली। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कायद में कब्जा माफिया बेलगाम। आला अदलिया और हुकूमत सिंध की लाख कोशिशों के बावजूद रफाई अराजी पर कब्जों के मामले पर फुल स्टॉप न लग सका। औरंगी टाउन के मास्टर प्लान में शामिल सेक्टर 15D शीट नंबर 2 के ईदगाह ग्राउंड पर कब्जा माफिया आहिस्ता आहिस्ता पंजे गाड़ रही है। इलाका मकीनों ने कब्जे के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। कहते हैं मेयर कराची और डिप्टी कमिश्नर वेस्ट मैदान पर कब्जा खत्म करा के साबका हैसियत बहाल कराएं। तो ये हमने मेयर कराची को भी दरखास्त दिया, PD औरंगी को भी दिया, DC को भी दिया, SDM को भी दरखास्त दिया है, मगर इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि ग्राउंड पर कब्जे से नौजवान खेल की सरगर्मियों से महरूम हो गए। नमाज ईद के इज्तिमात पर गैर एलानिया पाबंदी करके मैदान को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। कब्जा माफियों ने पूरा बेड़ा गलत कर दिया। लाइटें लगी हुई थी, दरख्त लगे हुए थे, बच्चे खेलते थे। यहाँ पर बिजनेस चालू हो गया है। नमाज जनाजा बंद कर दिया है लोगों ने, बदमाशी करते हैं, किसी को पढ़ाने भी नहीं देते हैं। रिहायशियों का कहना है कि ग्राउंड पर कब्जे की आड़ में गलियों के रास्ते इस कदर महदूद कर दिए गए हैं कि मरीजों को लाना ले जाना भी महाल हो गया। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़े आपको बताएं, मंगोपी टाउन की उसी साथ सुरजानी टाउन इंतजामिया ने अब्दुल्ला मोड़ ता 4 के चुरंगी 2 किलोमीटर 2 रोया मरकजी सड़क के पैचवर्क का काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। ट्रैफिक बहाव में रुकावट बनने वाली टूटी सड़कों की बहाली। अब्दुल्ला मोड़ ताफोर के चौरंगी 2 रोया सड़क की पैच वर्क के काम का आगाज कर दिया गया। शहरियों ने सड़क की मरम्मत का खुद बेड़ा उठा लिया। KDA ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी रोड का शुमार उन मरकजी सड़कों पर होता है जिसे आमदोरफ्त के लिए यौमिया लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। सड़क बारिशों के बायस गढ़ों में तब्दील होकर हादसात और ट्रैफिक रवानी में खलल का सबब बन रही थी। मसले के हल के लिए सरजानी टाउन के मुंतखब नुमाइंदों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत रोड की कारपोरेटिंग का काम शुरू कर दिया। चेयरमैन UC 7 उम्मीद अली काजी बोले 2 से 3 रोज में तमाम अमल मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। KDA के पास भी हम गए, मेरी पूरी टीम है, हाफिज इमरान साहब मेरे वाइस चेयरमैन, मेरे कोऑर्डिनेटर, मेरे काउंसलर है। हम तकरीबन 1 साल से मुसलसल KDA को बाकायदा दरख्वास्तें दी है मैंने। मैं मेयर साहब के पास भी गया हूँ, मैं टाउन चेयरमैन के पास भी गया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं कि 41 स्कीम है, हमने KMC को नहीं दी, KMC कहती है हम यहाँ काम नहीं करवाएंगे। तो भाई हमने अपने कुछ दोस्त है, कुछ हमारी प्राइवेट NGOs है, उनके साथ मिलकर अपने इलाकों को खुशहाल करना। मुझे वाइस चेयरमैन हाफिज इमरान और कोऑर्डिनेशन जकी जुबैर हसन बोले कि KDA से कई बार जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कहा, मगर मायूसी हुई तो अपनी मदद आप काम शुरू कर दिया। यहाँ के टूट फूट का शिकार थी जो सड़क थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तलिफ नुमाइंदों से मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये बेहतरीन काम यहाँ पर किया। और ये वो रोड है जो खराब हो चुका, खस्ता हो चुका था। KDA का काम था, KMC का काम था, उन्होंने नहीं किया। हमने अपने दोस्तों से मिलकर मुआवना से काम किया। इस काम की सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन की जा रही है। जहाँ पानी की लीकेज थी उसको खत्म किया गया है, और जो जहाँ पर कोई ऐसी जगह है जो बैठ चुकी है उसमें हम स्टोन ब्लॉक डलवाएंगे ताकि ये रोड कभी बैठे ना। मंगोपी टाउन इंतजामिया का दावा है कि सड़कों का पैच वर्क का काम म्यारी होगा जिसके दूरस्थ नताइज हासिल होंगे। कैमरामैन आगा रफी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में टमाटर की कीमतों में नुमाया कमी। गुज़श्ता इतवार 400 रुपये फ़ी किलो बिकने वाला टमाटर अब 150 से 200 रुपये किलो तक बिक रहा है। दुकानदारों के मुताबिक सप्लाई बेहतर होने से कीमतें कम हुई। काविश मेमन की रिपोर्ट। शहर कायद में टमाटर की बढ़ती कीमतें नीचे आना शुरू। गुज़िश्ता इतवार 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाला टमाटर अब आधी कीमत पर दस्तियाब है। ली मार्केट सब्जी मंडी में टमाटर 150 से 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। दुकानदारों के मुताबिक सप्लाई में बेहतरी के बाद कीमतों में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। फिलहाल जो है हम लोग होलसेल 150 रुपए किलो चला रहे, तो बाहर का मार्केट चल रहे 200-180 रुपए चल रहे हैं। तो शायद मस्जिद और भी सस्ता हो सकता है। बाजार का तरतीब अभी पहले से बता, ये माल आ गया, बॉर्डर खुल गया तो ईरान का बॉर्डर खुल गया, माल काफी आ गया।
शहरियों ने टमाटर की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया है, ताहम उनका कहना है कि दीगर सब्जियों की कीमतों में भी कमी आना चाहिए ताकि महंगाई से रिलीफ मिल सके। टमाटर पहले से जो 500, 600, 700 रुपए था, अभी उससे बहुत कम है। अभी अवाम के अंदर ये देखने में चीज आई है, तो अवाम टमाटर के फिर ऊपर वापस आ गई है। तो पहले तो टमाटर लोगों ने देखना छोड़ दिया था, खाना तो दूर थी बात। ये सिर्फ स्टॉक का मामला है और कीमतें बढ़ाने के लिए एक बहाना चाहिए होता है, बस और कुछ भी नहीं है। और लिस्टें यहाँ पे जो लगाई जाती हैं उसको तो बिल्कुल ही फॉलोअप नहीं लिया जा रहा। मार्केट जराये के मुताबिक कुछ दिनों में सिंध की मकामी पैदावार बहाल होने से टमाटर 100 रुपए किलो से भी नीचे आ जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद न होने पर MKM पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ग्रेटर कराची मास्टर प्लान 2047 के नाम पर एक बार फिर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 माहौलियाती इक्तिसादी ढांचे में इनकलाबी तब्दीली की जानिब अहम कदम। MKM के तहफ़्फ़ुज़ात मास्टर प्लान पर अमल दरामद को नागुज़ीर करार दिया गया। बहादराबाद मरकज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा इज़हारुल हसन बोले, 2007 में मुस्तफ़ा कमाल की सरबराही में कराची स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया था, जिसे मंजूर करने के बाद वेबसाइट से गायब कर दिया गया। कराची स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद न होने का मुकदमा लड़ने वाले एडवोकेट तारिक मंसूर का कहना था कि अदालत ने मास्टर प्लान पर अमल दरामद न होने पर नोटिस लेते हुए 2 दिसंबर तक तमाम इदारों से बयान हल्फी तलब किया है। करप्शन छुपाने के लिए कवानीन तब्दील किए जा रहे हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना था कि ग्रेटर कराची प्लान 2047 असल मास्टर प्लान से इनहराफ है, जो अवाम के साथ बड़े धोखे के मुतरादिफ है। कराची के साथ हैदराबाद, सक्खर और मीरपुर खास के मास्टर प्लान भी बनाए जाएं। MKM रहनुमाओं का कहना था कि शहर कायद में मुख्तलिफ इदारे अपने अलग अलग निज़ाम चला रहे हैं। कराची की तरक्की के लिए एक मरबूत मास्टर प्लान नागुज़ीर है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान चेसोरी से पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन फवाद एजाज खान ने मुलाकात की। मुलाकात में खेलों के फ़रोग़ और वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के खदमात को सराहा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान चेसोरी ने कहा कि खेल नौजवानों में नस्म ज़ब्त, इत्तेहाद और मुस्बत सोच को फ़रोग़ देते हैं। चेयरमैन फवाद एजाज खान ने कहा, ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप 2025 का इफ्तिताह 21 नवंबर को कराची में होगा। इफ्तिताही तकरीब शानदार आतिशबाजी और बैनुल-अक़वामी टीमों की शिरकत से यादगार बनाई जाएगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा कर दिया। सदर रेहान हरीफ ने कहा है कि महंगाई के मुकाबले में शरह सूद बहुत ज़्यादा है। ताज रहनुमा अतीक मीर ने मईशत की तबाही का जिम्मेदार सूदी निज़ाम को करार दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कारोबारी बरादरी ने शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा कर दिया। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेहान हनीफ ने कहा कि महंगाई के हिसाब से मौजूदा शरह सूद बुलंद है, इसे फौरी तौर पर 9% तक लाया जाए। उनका कहना था कि बुलंद शरह सूद कारोबारी सरगर्मियों में रुकावट और सरमायाकारों के लिए हौसला शिकन साबित हो रही है। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि सूदी निज़ाम ने मईशत को निकल लिया, हुकूमत शरह सूद सिफर करके इस्लामी मालियाती निज़ाम अपनाए। उनका कहना था कि आवाम के जहनों में इस्लामिक बैंकिंग का तसव्वुर मजबूत हो रहा है। ताजर रहनुमाओं का कहना है कि शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा और मुल्क की मईशत दोबारा इस्तेकाम की राह पर गामदान हो सकेगी। कैमरामैन फरहान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और गैर यकीनी हफ्ता रहा। 100 इंडेक्स में उतार चढ़ाव के बाद 502 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 153 अरब रुपए घट गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। उतार चढ़ाव के बाईस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गैर यकीनी की जद में, पॉइंट्स गिरते गए और सरमायाकारों का एतमाद डगमगाता गया। प्रॉफिट टेकिंग ने मार्केट को हिलाकर रख दिया। कारोबारी हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए मिला जुला रहा, जहां इंडेक्स में उतार चढ़ाव के बाद हफ्ते का अख्ताम मनफी जोन में हुआ। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 502 पॉइंट कमी के साथ 1,63,304 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,68,414 पॉइंट्स, जबकि कम तरीन सतह 1,63,041 पॉइंट्स रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सरमायाकारों की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग और माशी गैर यकीनी की फिजा ने मार्केट पर दबाव डाला, जिसके बाईस इंडेक्स में उतार चढ़ाव देखा गया। कि ये हफ्ता आपने देखा होगा मार्केट पूरा अप एंड डाउन रही है। इसकी वजह ये थी कि मार्केट तो बहुत ज़्यादा हाई अपने लेवल पे थी, तो अब ये थोड़ा सेलिंग प्रेशर है लोगों का कि माल अपना प्रॉफिट भी कर रहे हैं। थोड़ा सा सियासी हालात और मजहबी जमातों की तरफ वजह से भी जो लाहौर में वो जो मुरीदके में इंसिडेंट हुआ है, उससे भी थोड़ी सी मार्केट में प्रेशर है। काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये वीक। आप देखें स्लाइडली मार्केट बढ़ी है,
لیکن ایسا آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھے، فورنرز تھے، وہ مارکیٹ میں سیلر رہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو کمرشل بینکس تھے ان کی جو رزلٹ آئے وہ ایکسپیکٹڈ جو تھی اس کے مطابق نہیں آئے۔ کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 248 ارب روپے مالیت کے 7.5 ارب شیئرز کا کاروبار ہوا اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن 153 ارب روپے کمی کے بعد 18,814 ارب روپے کی سطح پر آ گئی۔ دوسری جانب ستمبر 25 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے سرپلس میں آ گیا، جہاں $11 کروڑ کا سرپلس ریکارڈ کیا گیا۔ اشرف خان، سٹی 21۔